नाज़रीन ग्रामी आदाब, आप सबका माय चैनल बेंगलुरु पर खैर मकदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां सालाना इजलास 24 नवंबर की शाम दारुल उलूम सबीलुर रशाद बेंगलोर में इख्तिताम को पहुंचा। आज बरोज 25 नवंबर 2024 डॉक्टर SQR इलियास साहिब, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजादिदी साहिब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी तफसीली और अहम रिपोर्ट माय चैनल बेंगलुरु आपके लिए लाया है। आखिर तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I, on behalf of All India Muslim Personal Law Board, welcomes you all here in Madrasa Sabilur Rashad. As you know that All India Muslim Personal Law Board, which is an apex body of Indian Muslim, has completed its 29th convention yesterday. This convention was very successfully conducted here, and we are very grateful to our reception committee, the Amir Shariat of Jamia Sabilur Rashad and their entire team. Their entire team, the way they have made the preparation, that it has allowed us to complete the meeting in a very peaceful and comfortable manner. As you know that every 3 years, Muslim Personal Law Board re-elect their office bearers, their president, their working committee, and also the president, in consultation with the working committee, appoint the office bearers. So Alhamdulillah, once again, we have re-elected our renowned Islamic scholar, Maulana Khalid Saifullah Rahmani, the president of All India Muslim Personal Law Board. And we filled the vacancies in founder members as well as term members. You know that All India Muslim Personal Law Board is represented from the entire country, the people from entire country. Almost all prominent Muslim organizations, all school of thoughts, all big Islamic institutions are represented in All India Muslim Personal Law Board. Although the entire membership limit is 251, and in this 251, we try to accumulate or to try to get assemble the people from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Assam. And this meeting, we also discuss the previous issues which were decided and what was the outcome. The report was presented, and it is discussed by the participants. Apart from members, we also invite some prominent people from all over the country. So they were the special invitees. So now with me today, our respected General Secretary, Maulana Shah Muhammad Fazlur Rahim Mujaddidi Sahab,
who is sitting next to me, he was again reappointed as a General Secretary of All India Muslim Personal Law Board. He is with me. To my left is Mohtaram Akbar Ali Saab, he is Secretary of Jamaat, and he will translate in Kannada language, whatever we said. Dr. Mujahid. And to the right side of Dr. Mujahid Jamil. Fazlur Rahim Mirza Sahib is Dr. Mujahid Jamil, a prominent leader from Karnataka, from Bangalore. मेरी गुल डॉक्टर है आसिम अफरोज साहब. And Asim Afroz Sahib, member of All India Muslim Personal Law Board. And Sulaiman Khan Sahib is Konkan member from Karnataka. So, yesterday we discussed some very important issues confronting the Muslim community in India. The most important issue, which was presently very well discussed throughout the country as well as in JPC and in Parliament, that is Waqf Amendment Bill 2024. You know, there are many misgivings in the media and social media about the Waqf properties. This has been said that Waqf board wherever once they start claiming that this is the Waqf property. Secondly, it has been said that the Congress party has formed the Waqf board to appease the Muslim community. I want to make it clear, and it has been said that there are many Muslim Waqf properties are about, according to the government announcement, that after railway and military, third largest property is the Waqf property. This is incorrect. Only in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, the Hindu endowments have more properties than the Waqf properties. Secondly, whatever protection and provisions available to the Waqf, Muslim Waqf, the similar protections or similar provisions were available to Hindu endowments and the Sikh endowments and the Christian endowments. Nothing special to Muslim Waqf. So, you know, the first Waqf Act was formed in 1923 by the British government. Then after India became independent, the first Waqf Act was adopted or formed passed by the Indian Parliament in 1954. Since then, till 1995 and till 2013, whatever amendments were brought in the Parliament, it has been इधर यहाँ मेरे बराबर इधर 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 उधर नहीं इधर जितनी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वक्त में, तो उसमें लाने से पहले there were consultation with the stakeholders, that is Muslims, and finally when 2013 में जो अमेंडमेंट आया था, उस मौके पर सचर कमेटी की रिकमेंडेशन भी सामने रखा गया और उसके बाद हमारे साथ मुसलमानों की तंजीमों के साथ
वाइड स्केल कंसल्टेशंस हुए थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम ए बिल was brought in the parliament without any consultation with any Muslim organization. ये कभी नहीं हुआ है कि जिसके लिए बिल लाया जा रहा है उससे कोई कंसल्टेशन ही नहीं हुआ है। और उसके बाद जब इस पे हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, देन द लोकसभा स्पीकर फॉर्मडे हैज गिवन दिस मैटर टू जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब लोगों से ओपिनियन इनवाइट किया, अगेन दे प्ले मिसचीफ, इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग द सजेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, they invited the suggestion from the entire citizens of the country, from all the citizens of the country. That was the general appeal. Anyway, All India Muslim Personal Board asked the Muslim community to submit their opinions through email, and we have supplied a QR code to them. And on the request of All India Muslim Personal Board, around 3 crore 66 lakh Muslims have submitted their emails, have given their suggestions to the JPC. And other people also submitted their opinions. तो इसके बाद then JPC invited people अपनी सजेशन देने के लिए JPC ने लोगों को बुलाया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी जेपीसी के पास जाकर अपने रिकमेंडेशंस और अपना ऑब्जेक्शन जो भी है इस बिल के ऊपर में वो पेश किया, और 211 पेज का एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया कि ये बिल जो लाया गया है वो किस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज को तबाह करने वाला बिल है। How the bill will usurp the waqf properties. हमने पूरे दलाइल दिए और उसके बाद जेपीसी के सवालों का जवाब भी दिए। लेकिन द वे द जेपीसी इज मूविंग अहेड, के बजाय इसके कि वो सिर्फ स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करते हैं, वो मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन कर रही है, इररिलेवेंट लोगों से कंसल्टेशन कर रही है, दोज हु आर अपोज्ड टू द वक्फ उनसे कंसल्टेशन कर रही है। तो जाहिर बात है कि जिस तरह से ये जेपीसी कोशिश कर रही है, एंड इवन द अपोजिशन मेंबर्स इन द जेपीसी दे आर ऑब्जेक्टिंग टू इट, दे हैव नॉट बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। तो हमको लग नहीं रहा है कि जेपीसी कोई ईमानदारी के साथ कोई काम करने वाली है। एनीवे, ये हम एक बार फिर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है वक्फ की, वो किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। वो हमारे बुजुर्गों ने अपनी ओन प्रॉपर्टी, अपनी ज़ाती मिल्कियत की ज़मीनों को वक्फ किया है, मसाजिद के लिए, ग्रेवयार्ड्स के लिए, ईदगाहों के लिए, खानखाहों के लिए, दरगाहों के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो ये जो सिनेरियो और ये जो सीन क्रिएट किया जा रहा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हड़प की गई, बिल्कुल गलत है। तो इस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें लाई गई है अभी तरमीम बिल में, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को, अगर ये खुदा न खास्ता पार्लियामेंट से पास हो गया तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थ्रू आउट द कंट्री। इसलिए हम अभी भी समझते हैं द गुड सेंस विल प्रिवेल and the JPC will give a correct report, convey our
arguments or our opinions to the parliament and how the entire Muslim community has rejected the bill. तो पहली बात तो ये है। तो इस कन्वेंशन में इस मसले पर भी बात हुई है कि अगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर अपोजिशंस, if the bill is passed without any amendments, then the Muslims will be compelled to take all the possible measures within the limits of the Constitution of India, within the framework of the Constitution of India. They will take all legal, constitutional and democratic measures. And to begin with, we have decided that the entire leadership of All India Muslim Personal Law Board, the office bearers of the All India Muslim Personal Law Board, and office bearers of all India Muslim organizations will sit in protest before the parliament. And we have appealed to all the state Muslim leadership of the Muslim organizations to have a sit-in dharna at respective assemblies. This is the first step. Then other steps will be taken. ये बात वक्फ से मुताल्लिक है। दूसरा इशू जो हमारे यहाँ ज़ेर बहस आया, वो इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बोगी जो है वो खामखा हर बार छेड़ी जाती है, कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो चीज़ें होती हैं वो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। बहुत सारी और बातें कहेगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, लेकिन यहां ये कहा जाता है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। एक ऐसे मुल्क में जहां पे इतने रीति रिवाज है, we have so many culture, we have different religions, we have different traditions, उन सबको आप एक कानून में कैसे बांध सकते हैं? शादी ब्याह कल्चर हर एक का अलग अलग होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी डाइवर्स सोसाइटी के लिए जो इंडिया है, ये नाइदर डिजायरेबल नॉर एक्सेप्टेबल। सेम वाज द कंक्लूजन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। चौहान साहब जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने ये बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड is not desirable at this stage. At least for 10 years we should not think about uniform civil code. हिंदुस्तानी मुसलमान ये बात बार बार कह चुके हैं कि हमारा कानून शरीयत Muslim personal law is derived from Quran and Sunnah. No Muslim can go against it. शादी ब्याह इनहेरिटेंस एवरीथिंग इज डिफाइंड इन कुरान और सुन्नह। तो हम उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में एक और बात मैं आप सामने रखना चाहता हूं। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू सामने आता है तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ये सिर्फ मुसलमानों का इशू है, बाकी लोगों को कोई इशू नहीं है। तो पिछले साल जुलाई में हमने दिल्ली में एक राउंड टेबल मीटिंग की थी, जिसमें प्रोमिनेंट सिख लीडर्स फ्रॉम अकाल तख्त, फ्रॉम अकाली दल, prominent Sikh leader from Sikh Personal Law Board, prominent leaders, archbishops of Delhi and other Christian religious leaders, prominent Bodh leaders, Dalit leaders, tribal leaders, MPs and MLAs,
वो सब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर ये बात कही कि इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू जो है वो कन्फ्रंट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स से, आर्टिकल 26 से, आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 25 से। तो ये अगर कोई, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, इफ यू थिंक दैट देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू बी गवर्न बाय देयर रिलीजन, देन देयर इज ए ऑलरेडी ऑप्शनल सिविल कोड इज ऑलरेडी available to them. That is Special Marriage Act, Indian Succession Act, ये मौजूद है उनके लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू लाया ही जाता है मुसलमानों को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा मसला लाया जाएगा तो इस बार वो सिर्फ मुसलमानों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात कि ये पूरी सिविल सोसाइटी को डिस्टर्ब करेगा, ये क्रिश्चियंस को डिस्टर्ब करेगा, ये सिखों को डिस्टर्ब करेगा, ये जो वन नेशन वन लॉ वाला जो कंसेप्ट बार बार प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, उससे एक बात ये जा रही है लोगों के जहन दिमाग में कि मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो हर आदमी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। एक पीसफुल कंट्री के अंदर स्टेट खुद लॉलेसनेस पैदा करना चाहे तो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? हाउ इसको हाउ इट विल बी जस्टिफाइड। दूसरी बात यह कि हमने कल ये तय किया है, जब ये उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया गया और फिर कानून बन गया, वो उस वक्त भी हमने अपोज किया था। और ये बात हम फिर एक बात कहना चाहते हैं कि किसी स्टेट को यह हक ही नहीं है कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाने का जब भी कोई मौका होता है तो वो सिर्फ सेंटर ला सकता है, स्टेट नहीं ला सकती। हाउ कैन इट बी यूनिफॉर्म इफ इट इज इलेक्टेड इन ए स्टेट? बहरहाल हमने कल ये तय किया है कि हम एक PIL के जरिए से वी आर गोइंग टू चैलेंज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट इन नैनीताल हाई कोर्ट। उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ के अंदर हम उसको चैलेंज कर देंगे। तीसरा इशू, आप जानते हैं कि हमारे देश में जब बाबरी मस्जिद की और राम मंदिर की तहरीक इस मुल्क में चलाई जा रही थी तो 1991 में एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट से, जिसमें यह बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट इस मुल्क में नहीं पैदा होगा। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की, जिस वर्शिप प्लेस की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, टेंपल हो, चर्च हो, जो पोजीशन थी वो अला अले ही बाकी रहेगी, एज इट इज बाकी रहेगी, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और जब बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो उस जजमेंट में इस एक्ट को रिट्रेट किया था। सुप्रीम फर्स्ट जस्ट वो मंदिर है, ये मंदिर है, ये फलां का मंदिर है, पहले ज्ञानवापी मस्जिद के साथ हुआ, फिर मथुरा की ईदगाह के साथ हुआ, फिर भोजशाला की मस्जिद के साथ हुआ, फिर टीरे वाली मस्जिद पे क्लेम शुरू कर दिया, फिर अब रिसेंटली संभल पे हो गया, जामा मस्जिद संभल पे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट की जो रेलेवेंस है वो खत्म हो गई है। दिस इज नॉट ए एक्ट इनेक्टेड बाय एनी स्टेट, दिस इज द एक्ट व्हिच हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून की अवहेलना हो रही है पूरे देश के अंदर।
सुप्रीम कोर्ट से हम गुहार लगा रहे हैं बार बार कि आप रोकिए इस जो लोअर कोर्ट्स को, आप रोकिए हाई कोर्ट को, लेकिन कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। तो ये अगर सिलसिला शुरू हो जाएगा कि एक के बाद एक मस्जिद, देखिए हिस्टोरिकल मस्जिदें हैं, और खुद बाबरी मस्जिद के सिलसिले में ये जो क्लेम किया गया था कि किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया था बाबरी मस्जिद, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है 2019 में, उसमें उसने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही है कि वी डिड नॉट गेट एनी एविडेंस which suggests that Babri Masjid was erected by demolishing a mosque, a मंदिर। किसी मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा हमारे को कोई तथ्य नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। तो अब ये जो सर्वे करवाया जा रहा है, खुदाई करवाई जा रही है, जानने के लिए नीचे क्या चीज़ थी, आप मुझे बताइए कि 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले कोई चीज़ कहीं थी तो उसकी क्या रिलेवेंस है आज की तारीख में। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है, ये अगर नहीं रुकेगा तो ये पूरे मुल्क में लॉलेसनेस पैदा कर देगा। हमें अंदेशा है इस बात का। ये जो कल हुआ है संभल में, बहुत गलत, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, कि सिर्फ 23 ये वहाँ के एसपी सिटी का मैंने अभी ऑडियो देखा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 3 से 4 सेकंड तक के पत्थर चले थे, पत्थरबाजी हुई थी जब वहाँ पे सर्वे करने की टीम आई तो, और उस पर गोली चला दी आपने, 2 लोग मर गए, लाठीचार्ज कर दिया उन लोगों पर। क्या ये प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है लोगों को, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर अपनी बात कहने का? डेमोक्रेसी के अंदर अपनी बात रखने का हक हमको अधिकार हासिल है। हाँ, अगर कोई हाथ में कोई ऐसा करता है, पीसफुल नहीं होता है, वायलेंट हो जाता है, तो आप उसको रोकने के तरीके से रोकिए ना, गोली चला देंगे आप उठाकर। और आप खुद कह रहे हैं कि 3 से 4 सेकंड तक के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। दिस इज द वर्जन, पुलिस वर्जन है। आप पुलिस वर्जन के बारे में आप खुद जान सकते हैं कितना सही और कितना गलत होता है। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए पुलिस हमेशा इस तरह के दावे करती है, लेकिन उनका दावा ये कि 2 से 3 सेकंड पत्थर चलाए गए थे, आपने उठा के गोली चला दी, 2 लोगों को खत्म कर दिया। ये तो अजीब गरीब सिचुएशन हमारे मुल्क में पैदा हो रही है। तो ये अगर सिलसिला चलता रहेगा मसाजिद के बारे में, तो हम समझते हैं कि शायद इसके बाद बहुत सारी चीज़ें पूरे मुल्क में प्रॉब्लम पैदा होंगी। आप क्या भी हो रहा है कर्नाटक के अंदर, तो ये एक और चीज़ कल हमारे यहाँ ज़ेर बहस आई है, वो ये थी कि हमारे एक इंटरनेशनल इशू है, पिछले 1 साल से गाज़ा में ब्लड शेड हो रहा है। दुनिया का सबसे बदतरीन हादसा है। एक तरफ इसराइल है, अमेरिका है, मगरबी ताकतें हैं, एक आबादी के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल ख़त्म हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए गए, और तकरीबन 45,000 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें 2/3 विमेन एंड चिल्ड्रंस हैं। वैसे भी वो पहले से एक ओपन जेल थी, लेकिन जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, 1 साल से 13-14 महीने हो रहे हैं, पानी की किल्लत है, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंचने दी जा रही है, चीज़ें ब्लॉक कर दी गई हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। ये कौन सी जंग है भाई? ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है। हमारा देश जो है वो ये कहता रहा है, और अभी तक उसका स्टैंड यही है कि हम इस मसले का पीसफुल सोल्यूशन चाहते हैं। हम वी फेवर 2 स्टेट सोल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस।
फलस्तीनियन को भी यह हक हासिल है। हालांकि आप जानते हैं कि वो पूरी ज़मीन पे इसराइल का कब्ज़ा जो है वो नाजायज़ है। इसराइल इज़ ए ऑक्युपाइड कंट्री। 1948 से पहले इस तरह का नाम का कोई कंट्री था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि जो असल बाशिंदे थे उस जगह के, वो खदेड़ते दो जेलों के अंदर बंद कर दिए गए हैं। एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा। तो ये जो ब्लडशेड हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, पूरी आबादी खत्म कर दी गई है, पूरा इलाका खंडर में डेब्रिस में तब्दील हो गया है, उस पर कोई आवाज नहीं उठ रही है दुनिया के अंदर। अगर आवाज उठा रहे हैं तो सिविल सोसाइटी के लोग उठा रहे हैं, गवर्नमेंट खामोश बैठी हुई है। बल्कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लोग दे आर फ्यूलिंग दिस कन्फ्लिक्ट, दे आर सेंडिंग देयर एम्युनिशंस। तो इस पर बहुत ही ज़बरदस्त आपत्तिजनक कल हमारी कन्वेंशन में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में लोगों ने अफसोस का इजहार किया है, इसको कंडेम किया है और ये मुतालबा किया है कि यूनाइटेड नेशन ने जिस तरह से इस मामले में इसराइल को लताड़ा है और उनसे कहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए, सीज फायर किया जाए, फौरन तौर पर लोगों के जो बंधक बनाया गया दोनों तरफ से उनको छोड़ा जाए और गज़ा को रेस्टोर किया जाए, उसको रीबिल्ड किया जाए। हम समझते हैं कि हमारे देश को जो यूक्रेन और रशिया के मामले में मध्यस्थता करने के लिए बार बार कोशिश करता है, उसे इसराइल और फलस्तीन के मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल ताल्लुक रहा है फलस्तीन से। गांधी जी ने 1948 में ये बात कही थी कि जिस तरह ब्रिटेन ब्रिटिशर्स के लिए है, इसी तरह फलस्तीन फलस्तीनियंस के लिए है। और हमने 1992 तक के इसराइल को इस मुल्क में अपना दूतावास नहीं बनाने दिया था, जबकि पीएलओ को हमने यहाँ पे कंसलेट बनाने की इजाज़त दी थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। हमने उनके साथ सहानुभूति जताई है, जो लोग जिनको जो शहीद हो गए हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए परेशान हैं। और हमने ये अपील की है अपने देश से भी और उन तमाम देशों से भी कि वो इस पर मध्यस्थता करके इसको सीज फायर करवाए और ये जेनोसाइड को रोकने की कोशिश करें। एक और अहम मसला हमने इसमें कल ज़ेर बहस लाया है। देखिए, हम जानते हैं ये जो रिलीजियस सैक्रेड पर्सनैलिटीज़ होती है, मुक़द्दस शख्सियत जो होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उससे लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू से ज़्यादा उसको अजीज़ रखते हैं। लेकिन क्या बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर, ऐसे मिस्क्रिएंट बराबर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत डेरोगेटरी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंसल्टिंग वे में उनकी बात करते हैं और किसी के कान की जू नहीं रहती। आज वो सरेआम घूम रहे हैं मैदान में, दे आर रोमिंग अराउंड। और अगर उसमें कोई प्रोटेस्ट करता है तो उनके खिलाफ जो है सेक्शन लगा के गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है। चाहे वो पर्सनैलिटी किसी भी धर्म की हो, वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उनको उनके बारे में अशब्द कहने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हमने ये मुतालबा किया है कल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट से एक ब्लास्फेम के बारे में एक कानून लाए और ये फैसला करे कि किसी भी शख्सियत के बारे में, किसी भी धार्मिक पर्सनैलिटी के बारे में अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई, और किसी को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह की वो करे।
एक आखिरी बात हमने कल ये तय की है, कल एक इस पर ही हमने रेजोल्यूशन लाया है कि हमारे देश में बहुत लंबे अरसे से हमारी बहनों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। रेप के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं, यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ कलेक्टिव रेप हो रहे हैं और उसके खिलाफ कोई सख्त इक़दाम नहीं होता है। निर्भया के वाक़े के बाद हमने एक वर्मा कमेटी बनाई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, और उसने उसके रिकमेंडेशन के बुनियाद पर ये ऐसा समझा जा रहा था कि शायद आपके बाद नहीं होगा ये सिलसिला, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम यहाँ तो ये बात करते हैं कि 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको बराबरी मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो चेस्टिटी है, उसको प्रिजर्व करने की हम कोई कोशिश नहीं कर रहे। हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है पूरे देश में, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात को। तो हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से, और देखिए इस मामले में अगर हुकूमत ये तय कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, इस तरह के जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट बिल्किस बानो के का जो इज्तिमाई रेप हुआ है उसके दोषियों को जो है रिहा कर देती है, उससे क्या तवक्को की जा सकती है। बहरहाल ये 5-6 बड़े मुद्दे थे जो हमारे इस कन्वेंशन में ज़ेर बहस आए थे। मैं चाहूँगा कि इसका पहले अगर कन्नड़ में अनुवाद हो जाए तो उसके बाद फिर हम सवाल जवाब के लिए अब शुरुआत करेंगे। क्या होगा? सुनिए, मैं अभी 1 मिनट ये कन्नड़ में कर देंगे, उनको दे देंगे संक्षेप में। बोली ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ दो अर्थ भारती ಇದೆ तो बाद में देंगे। ಈ ದಿನ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ठीक है, आप इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं भी हूँ, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। सर, दो चीजें सर, एक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है और दूसरी है वक्त इशू को लेकर। आपको कहीं लगता है कि तमाम जो गुजारिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है उनको दबाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से? और दूसरी बात है सर, जो पार्लियामेंट सेशन आज शुरू हो रहा है, आपको कहीं से ये लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक बैरियर में रखने की कोशिश इस पार्लियामेंट के सेशन से शुरू हो? देखिए असल में पार्लियामेंट के सेशन में हम एक चीज़ ये महसूस कर रहे हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के सेशन की बात नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट के इलेक्शंस को देखेंगे, असेंबलीज के इलेक्शन को देखेंगे, तो एक टर्म कार्ड निकाल लिया है रूलिंग पार्टी ने कि आप मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत पैदा करो और इलेक्शन जीत लो। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर ये कंटिन्यू होता है पूरे देश में, तो ये जो अंग्रेज़ों का फार्मूला था, अगर आपने इसको अवतार करना शुरू कर दिया तो ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा आपत्तिजनक मसला खड़ा हो जाएगा। हम समझते हैं कि सियासत को मुद्दों पर जो मुद्दे हैं, बेसिक इश्यूज हैं, उस पर लड़ना चाहिए और ये जो कम्युनल हार्मोनी है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब जो शब्दावली इस्तेमाल होती है इवन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से भी पार्लियामेंट स्पीचेज में, वो वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन देखिए हम ये महसूस करते हैं कि पार्लियामेंट में जो डिबेट होगा
वक्फ के ऊपर में भी और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी, अगर यूनिफॉर्म सिविल का इशू आता है तो उसमें हमारी जो बातें हैं, हमने जो हमारे जो ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि हमने वक्फ के सिलसिले में तकरीबन ऑलमोस्ट वी मेट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, इवन इंक्लूडिंग द एनडीए पार्टनर्स। चंद्रबाबू नायडू से भी हमने मुलाकात की, नीतीश कुमार तक भी हमने बात पहुंचाई, चिराग पासवान से भी मुलाकातें की गई और ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई है। तो मेरा मानना यह है कि हम तो ये सोचते हैं कि भाई ये देखिए, जो राजनीतिक इश्यूज हैं उसको अलग रखिए और जो लोगों की रिलीजियस भावनाएं हैं, उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं, उसको आप छेड़ने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि हम तो ये समझते हैं कि भाई गुड सेंस विल प्रिवेल, और मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है, बिल इसके बावजूद भी मंजूर हो जाता है, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, व्हाट वी विल डू, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। आपने कहा कि दिल्ली में पार्लियामेंट के आगे और स्टेट में असेंबलीज के आगे धरना शुरू करेंगे, तो उसकी कोई डेट आप लोगों ने तय की है कि कब से ये शुरू होगा? वो हमारी कमेटी तय करेगी कि हम समझते हैं कि खुदा करे कि वो दिन ना आए कि पार्लियामेंट इस तरह का फैसला करे। नहीं, क्योंकि जो पार्लियामेंट सेशन आज शुरू हुआ है, तो इस सप्ताह के अंत तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट टेबल कर देंगे। ठीक है, अगर उसको एक्सटेंड करती है जेपीसी, तो उन्हें पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यह तय है कि इस बार के पार्लियामेंट, इस बार के जो सेशन है, इसमें ये जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे रही है और इस मुद्दे के ऊपर में चर्चा होने वाली है। देखिए, ये जेपीसी की रिपोर्ट देना है ये तो तय है, लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा भी हो जाएगी, ये डिपेंड करता है एनडीए के पार्टनर्स पर। मेरा मानना ये है कि हम अभी वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज ये बिल, मैंने बताया आपको, अगर पास होता है तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमने बताया आपको। लेकिन बहरहाल ये हमें उम्मीद है कि हमारी बात पार्लियामेंट तक जाएगी और लोग जो है उसको सुनेंगे, समझेंगे कि जिनके लिए ये बिल लाया जा रहा है उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए, किसी भी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में पब्लिक जो होती है वो फाइनल अथॉरिटी होती है। मैंने बताया आपको 3.6 करोड़ लोगों ने सिर्फ बरसल्ला बोर्ड की क्यूआर कोड से भेजा है अपना ओपिनियन। 3.66 हाँ, 3.66 करोड़, और उसके साथ बाकी और लोगों ने जो भेजा है वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ पीपल हैं। ये हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी जेपीसी पर सबसे बड़ा ओपिनियन है जो गया है, इससे पहले कभी नहीं गया है, सिर्फ चंद हजार लोग गया करते, यानी 5 करोड़ पीपल्स ने कोई बात कही है, इसका मतलब उसकी बहुत ही अहमियत है। तो इसके बाद तो पार्लियामेंट में देर बस आना ही चाहिए कि ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी हैज रिजेक्टेड दिस, तो उसके बाद कुछ देर बस नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा वो हमने बताया। सर, आज जेपीसी के जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की कुछ देर पहले, ये कहा है कि जो मीटिंग्स हुई हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। इसमें 7 से 8 एमपी हैं, असद साहब भी हैं और बाकी लोग भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं जेपीसी में, वो जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपने सेट की थी एज ए बोर्ड या एज ए कम्युनिटी, वो उसको फुलफिल कर पाए अभी तक? क्या लगता है कि उन पर कोई दबाव है जिस वजह से वो अपनी बात को खुलकर नहीं रख पा रहे हैं? आप बोर्ड का क्या व्यू है, क्या वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात को वहाँ पर रख पाए हैं या फिर उनकी बात नहीं सुनी? देखिए, हमारा मानना ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही का कहना नहीं है, बल्कि जितने अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो सब का ये कहना है, द वे जेपीसी वाज मूविंग अहेड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद इन द मेंबर्स, विद इन द कमिटी, जिस तरह वो फैसला कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को बुला रहे हैं, जिस तरह मौका नहीं दे रहे गौर करने का, ये बात 2 बार वो स्पीकर से मिलकर कह चुके हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो कुछ भी उन लोगों ने बात रखी है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने अपना हक अदा किया है। लेकिन खुद जो चूंकि मेजॉरिटी बीजेपी के लोगों की है और चेयरमैन साहब अलाउ नहीं कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, डिबेट्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे लोगों को,
हमारे सामने जब हम गए थे मिलने के लिए, हमारे सामने बहुत विवाद हुआ था। तो मेरा कहना ये है कि साहब देखिए, किसी भी जेपीसी को जब कोई चीज़ दी जाती है तो पार्लियामेंट में चूंकि डिबेट कंक्लूसिव नहीं हो पा रहा है तो जेपीसी के हवाले कर देते हैं। भाई जेपीसी बहुत धीरज के साथ उसमें तफसील से जाएगी, सब सुनेगी। लेकिन जिस तरह की जेपीसी हुई है, हम लोग भी जब गए थे उसमें हमको लगा कि भैया तो पार्लियामेंट से ज़्यादा झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो अगर मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये कहना है कि इट शुड बी एक्सटेंडेड और टाइम मिलना चाहिए बात करने के लिए, मेरा ख्याल बिल्कुल सही मुतालबा है। इसलिए कि जो ऑब्जेक्शंस गए हैं उसको डिस्कस करने का मौका ही नहीं आया होगा। मैंने बताया हमने 3,66,00,000 तो हमने भेजे हैं ना, और लोगों ने भेजा है, उसको भी तो डिस्कस करना चाहिए ना कि हमारा ओपिनियन क्या है। तो एटलीस्ट जेपीसी शुड गो, यानी की मीटिंग और उसकी जो पूरी कार्रवाई है वो बहुत एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई रिपोर्ट आनी चाहिए। वी सपोर्ट इट। कल जो जलसा हुआ, एक मिनट आपको, कल जो जलसा हुआ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसमें रेजोल्यूशन क्या था, डिमांड क्या था, हुकूमत के सामने आप क्या मुतालिबे रख रहे हैं? वो मुतालबे मैंने रखे अभी आप सामने रखें, रेटिंग में भी रेजोल्यूशन क्या, किन चीज़ों पर पास है? बताया ना मैंने आपको, मैंने 7 बातें बताई है आपको, और भी बातें हैं लेकिन मैंने मेजर पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। यस मैडम, एक मिनट। आपने एक रेजोल्यूशन में कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका इन टोटो पालन होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो रहा है, इस वजह से मस्जिद मुश्किलें में है। तो क्या बोर्ड इस बात को रखता है कि वो इस, जैसा आपने कहा कि यूसीसी में आप पीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, क्या एक पीआईएल बोर्ड चाहेगा कि इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए कि ये जो आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, जिस तरह के ये पीआईएल ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। जमीयतुल उलमा से ये पीआईएल ऑलरेडी पेंडिंग है, वो आई नहीं रही टेबल के ऊपर में। जी सर, संभल में जो हुआ, क्या आपको लगता है कि एक सिलसिला बन रहा है लगातार, मस्जिदों पर जिस तरह सर्वे की बात लगातार हो रही है? कल हमने संभल में देखा किस तरह से वायलेंट प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन प्रिवेल करेगी पूरे मुल्क में तो ये हर जगह यही होगा। भाई आप मुझे बताइए ना कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ किसी जगह पे, आप कल को आगे कहेंगे नहीं ये हमारा मंदिर है, हम इसको सर्वे करना चाहते हैं, या हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप है, किसी मंदिर के बारे में भी कोई कल क्लेम करने जाकर, तो क्या होने वाला है? यही होगा ना। पब्लिक तो, अगर गवर्नमेंट रोकेगी नहीं इसको तो पब्लिक आएगी मैदान में। तो मेरा कहना ये कि ये अगर स्टेट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट ए लॉलेसनेस इन द कंट्री, हु कैन प्रिवेंट इट? अगर खुद स्टेट ये कर रही है कि वो ऐसी लॉलेसनेस को रोक नहीं रही है। अभी देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने पास किया था? पार्लियामेंट ने पास किया था ना। तो इसको डिफेंड किसको करना चाहिए? गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट ने डिफेंड कर रही है अपने ही बनाए हुए एक्ट को, तो हु विल डिफेंड इट? तो हमारा मानना ये है कि ये तो देखिए, किसी की भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, पिछले जितने कानून है उसको इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी उसकी है। सर, रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट था, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस ने जो है एक तरह से वक्फ बोर्ड में पूरी जाते जाते जो पूरी जमीनें मुसलमानों के हवाले, वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी है, क्या कहेंगे आप सब? मुझे ये बताइए ना कि ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, देखिए कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं जो उनके स्टेटस को शोभा नहीं देती है। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी ज़मीन है, एक बता दीजिए पूरे देश के अंदर, जो कांग्रेस ने गिफ्ट किया। मैंने आपको बताया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हुकूमत की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी। इस्लाम के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक आदमी कोई चीज़ वक्फ करता है तो वक्फ उसके लिए सदका जारिया हो जाती है, यानी मतलब वो मरने के बाद भी उसका पुण्य उसको मिलता रहता है। तो पुण्य कमाने के लिए लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी जायदादें वक्फ की हैं, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए। तो ये बिल्कुल गलत झूठ बात है कि हुकूमत ने कोई चीज़ हमको दी है, बल्कि हम तो उल्टा ये कहेंगे हुकूमत ने बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। 123 प्रॉपर्टी तो दिल्ली के अंदर है, जो तय हो गया था इंदिरा गांधी जी के ज़माने में कि ये वक्फ बोर्ड को वापस कर दी जाएगी, अब तक नहीं हुई।
ऐसी हर स्टेट के अंदर जितने प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज हैं वो सब गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है। तो ये तो उल्टी बात है। क्या इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जनरल सेक्रेटरी साहब की, उसको हम लोगों ने अटेंड किया था और ये मसला उभर के सामने में आया। खासकर अगर बात करें कर्नाटक की, तो बीजापुर के अंदर में कई किसान हैं, कई गांव हैं और वहाँ कई किसान हैं। केरल के अंदर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग सालों सालों से रह रहे हैं और उसके ऊपर में वक्त का क्लेम आ गया। तो सवाल ये है, तमिलनाडु में एक गांव है जो पूरा गांव ही कर दिया, जहाँ 1300 साल पुराना मंदिर भी है। सवाल ये है कि इस तरह के लोग जो बसे हुए हैं, जिनकी खेती चल रही है, जिनके खलिहान हैं, जिनका जीवन उस पर टिका हुआ है, उन ज़मीनों को लेकर के क्या इस पूरे जो कन्वेंशन होगा उसके ऊपर में चर्चा हुई? कुछ खामियां तो होंगी उसके अंदर, आप लोगों को भी समझ में आता होगा, तो क्या उसके ऊपर चर्चा हुई कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाना चाहिए? देखिए, असल में दो चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि कोई जगह वक्फ की ज़मीन होती है, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो या किसी काम के लिए रखी गई, वहाँ से किसी वजह से मुसलमानों का माइग्रेशन हो जाता है, तो वहाँ से वो ज़मीन यानी इस्तेमाल में नहीं रहती है, दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो उसका टाइटल नहीं चेंज होता है, उसकी जो लीगल पोजीशन वो चेंज नहीं होती है। देखिए, वक्फ के बारे में और हर वक्फ के बारे में, सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं कह रहा मैं, हर वक्फ के बारे में ये बात है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में एक कानून है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन या लॉ ऑफ लिमिटेशन, कि किसी की ज़मीन पर अगर आपने कब्जा कर लिया है, 12 साल तक आपका कब्जा है और किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो आप मालिक हो गए उसके। लेकिन जितने इंडोमेंट्स हैं, जितनी औकाफ हैं, चाहे मुसलमानों की हो, क्रिश्चियंस की हो, हिंदुओं की हो, सिखों की हो, दे वर ऑल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन ज़मीनों को वापस ले लिया जाए या ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाए, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, हर चीज़ का रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म खुद वक्फ एक्ट के अंदर मौजूद है। ये सब चीज़ें ट्राइब्यूनल को रेफर होगी, ट्राइब्यूनल फिर वक्फ बनाता ज़रूर है, लेकिन वो सब गवर्नमेंट के लोग होते हैं, यानी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा, कानून का जानकार होगा, शरीयत का जानकार होगा, और वो बैठ के तय करेंगे। और इवन इफ सपोज यू डिड नॉट एग्री विद द ट्राइब्यूनल्स डिसीजन, अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं, तो यू कैन चैलेंज इट इन हाई कोर्ट, यू कैन चैलेंज इट सुप्रीम कोर्ट। ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। कोई ऐसा इशू नहीं है जो पैनिक क्रिएट कर रहा हो समाज के अंदर। 300 साल से अगर किसान अपनी खेती कर रहे हैं वहाँ पर, उस पर क्लेम हो जाए, किसान कहाँ जाएगा कोर्ट के अंदर? भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी आपने छीन ली है, ले ली है वापस, सब कुछ ऐसी बात तो हुई नहीं ना तमिलनाडु में हुई ना वहाँ हुई। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो उसका ऑल्टरनेटिव दे सकती है। अब पंजाब में आपको बताऊँ, ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं, ऐसे बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जहाँ मुसलमान नहीं रहते हैं, किसी सिख भाई ने कब्जा कर रखा है, किसी और ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उसका टाइटल नहीं चेंज हुआ है, उसकी ओनरशिप नहीं बदली है, और बाज़ जगह सिखों ने मस्जिदें वापस करना शुरू कर दी है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये होता है, भाई किसी वजह से यहाँ से चले गए, मंदिरों की ज़मीन पे भी कब्जा हो जाता है, गुरुद्वारों की ज़मीन पे भी कब्जा हो जाएगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि आप कब्जा कर ले तो मेरी ज़मीन हो गई। भाई इलीगल तरीके से कब्जा किया ना आपने। तो अगर हुकूमत, देखिए हमारे यहाँ हुकूमत क्या करती है, रिसेंटली वो लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी हो गई थी, कई सालों से थी वहाँ पे आबादी, गवर्नमेंट ने उठा के बुलडोज कर दिया, ये हमारी प्रॉपर्टी है। वहाँ क्यों नहीं कहा गवर्नमेंट ने कि भाई ये इतने सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, इनको दे देना चाहिए? तो बहरहाल ये सवाल तो मेरे ख्याल से आपके हो गए हैं, तो मैं इनको, और कोई सवाल अगर नहीं है तो हम कन्नड़ के हवाले करते हैं। ठीक, अब आप ठीक है। तो मैं on behalf of All India Muslim Personal Board and on behalf of General Secretary All India Muslim Personal Board, we extend our thanks and gratefulness to you that you have taken the pain to come over here. अब इधर बीच में आ जाइए। Thank you। ये वो बाहर गया। वो बाहर कर लेंगे।